So, beta, continuing the series part one ahead with the next question, which is question number six. Now, the question is, how are lungs designed in human beings to maximize the area for exchange? So, beta, what happens that I will explain it with the help of a diagram. So, see, beta, it is the spores. We all know it is the human. Suppose it is nostrils. Then it leads to windpipe called as trachea, isn't it? So, beta, after trachea, it divides into bronchus. So, it is primary bronchus, which is followed by secondary bronchus. So, secondary bronchus is then followed by bronchiole. Then it becomes the terminal bronchiole. Then it becomes the respiratory bronchiole. After that, it divides into alveolar duct and finally opens into alveoli. So this is what we all know, isn't it better? So let me just uh, give it a name. So it was nostril, nose. It is then our, oh sorry, food pipe. No, not it's not food pipe at all. It's our windpipe, or we call it trachea. There are some cartilage rings. Okay. After that, we have the primary bronchus. Primary bronchus divides into secondary bronchus. Secondary bronchus divides into bronchiole. Bronchiole divides into terminal bronchiole. Terminal bronchiole divides into respiratory bronchiole. Respiratory bronchiole divides into alveolar duct. And finally, it opens into alveoli. So this is what is happening at the level of lung. So here is one lung, and here is second lung, and this is what is happening in the lungs. Okay, so let me just remake it. uh, so this is all is happening in the lungs area. Okay, so I have only made right lung. Similar happens in the left lung. Okay, so beta, now what is happening? Just let me write the proper answer now. Okay, so what is there that the passage, that is the respiratory passage, divides डिवाइड कर रहा है ना. सो पहले ये ब्रोंकस बना, फिर सेकेंडरी ब्रोंकस बन गया, फिर ब्रोंक्योल बन गया, फिर टर्मिनल ब्रोंक्योल बन गया, फिर रेस्पिरेटरी ब्रोंक्योल, फिर डक्ट, फिर एल्वियोलाई. सो इनटू the passage divides into primary bronchus, which further divides into secondary bronchus, which further divide into various bronchioles, and finally
ओपन इनटू एल्वेओलाई। ठीक है बेटा। सो बेटा होता क्या है? सो यही मैंने यहाँ पे लिखा है, जो यहाँ पे बना के दिखाया आपको वही यहाँ पे लिखा है कि ये जो पासेज है, ये पहले प्राइमरी ब्रोंकस बना, ठीक है, देन जो सेकेंडरी ब्रोंकस बना, फिर बहुत सारे ब्रोंक्यूल आए, जैसे कि यहाँ पे टर्मिनल ब्रोंक्यूल आया, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल आया, फिर फाइनली ये एल्वेओलाई में जाके ओपन हुआ। इससे हो क्या रहा है, इस डिवीजन से हो क्या रहा है? राइट ऑन, दिस डिवीजन increases the surface area for gaseous exchange. Point number one. Point number two, alveoli. So बेटा देखो सरफेस एरिया कैसे इंक्रीज हो रहा है। सपोज करो एक ये था, एक ये है। तो किसका सरफेस एरिया ज्यादा है? इसका सरफेस एरिया ज्यादा है या फिर इसका? जाहिर सी बात है इसका सरफेस एरिया ज्यादा है। अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो क्या ज्यादा होगा? गैसेस का एक्सचेंज ज्यादा होगा। यहाँ से भी ऑक्सीजन आएगी, यहाँ से भी आएगी, यहाँ से भी आएगी, यहाँ से भी आएगी, यहाँ से भी आएगी। सो ऑक्सीजन का एक्सचेंज जो है वो बढ़िया होगा। सेकेंडली, एल्वियोलाई जो है वो क्या है? बलून लाइक स्ट्रक्चर है। ये है ना बैलून लाइक, गुब्बारे जैसा है। सो एल्वियोलाई इज अ बैलून लाइक स्ट्रक्चर। उससे क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है सरफेस एरिया फॉर गैसियस एक्सचेंज। नंबर थ्री, नंबर थ्री पे क्या बेटा? ये जो एल्वेओलाई है ना, इसके पास बहुत सारी ब्लड वेसल्स भी हैं। क्या है? ब्लड वेसल्स भी हैं। सो ब्लड वेसल्स से क्या होता है कि जल्दी जल्दी से जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में चली जाती है। ठीक है। सो एल्वेओलाई हैज एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ blood vessels, therefore it increases exchange of gases। अब हमें पता है कि गंदा ब्लड आएगा, किसके पास आता है गंदा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। हार्ट से आता है ना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो किसके पास आता है? लंग के पास। यहाँ से ब्लड, गंदा ब्लड चला जाएगा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड चली जाएगी, और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लंग से बाहर चली जाएगी, और ऑक्सीजन जो है वो यहाँ से हार्ट के पास चली जाएगी। ठीक है। सो ब्लड के थ्रू। सो इसलिए इसके पास क्या है? ब्लड वेसल्स हैं बहुत ज्यादा। आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर नाउ। सो दीज आर द थ्री पॉइंट्स एंड इट इज द डायग्राम। सो नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, राइट एनी टू कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन आवर बॉडी। सो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल हीमोग्लोबिन होता क्या है? सो हीमोग्लोबिन बेटा एक प्रोटीन है, एक पिगमेंट है, एक प्रोटीन है which number one gives red color to RBC। रेड ब्लड सेल को रेड कलर कौन दे रहा है? हीमोग्लोबिन दे रहा है। सेकेंडली, इट हैज हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, therefore help in transport of oxygen in body। ठीक है। सो ये ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट में मदद करता है, यानी कि लंग्स से ऑक्सीजन को हार्ट पे लेके जाता है, हार्ट से पूरी की पूरी बॉडी के पास लेके जाता है किसको? ऑक्सीजन को। ठीक है। सो सपोज करो ये आपका हीमोग्लोबिन है। सो ये डायग्राम आप ड्रॉ कर लो, इट इज हीमोग्लोबिन। सो इसके पास फोर साइड्स हैं, चार सीट्स लगी हुई हैं, जिसपे आके कौन बैठेगा?
ऑक्सीजन आके बैठेगा। ठीक है, और ये ब्लड में जाएगा और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है बेटा। सो ये जब हम रेड ब्लड सेल को जब माइक्रोस्कोप पे के नीचे देखते हैं तो हमें कुछ ऐसा लगता है। सो आप देखो रेड ब्लड सेल के बीच में हीमोग्लोबिन नहीं होता। और जब पे इसके पास हीमोग्लोबिन नहीं है वो कैसा है, वाइट है, पेलर है। और जहाँ पे ऑक्सीजन है वहां पे कैसा है, सॉरी जहाँ पे हीमोग्लोबिन है वो कैसा है, रेड है। ठीक है, सो इससे पता चलता है कि इसको रेड कलर कौन दे रहा है, हीमोग्लोबिन दे रहा है। अब क्वेश्चन क्या था कि हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी से क्या होगा। सो व्हेन hemoglobin is deficient, so what will happen? So क्या होगा बेटा, अगर हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो, अगर हीमोग्लोबिन नहीं होगा then there is decrease oxygen carrying capacity of blood, है ना, कि ब्लड जो है वो ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर पाएगा। सो डिक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई टू ऑर्गन्स, ऑर्गन्स को ऑक्सीजन नहीं जाएगी। ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, अगर हीमोग्लोबिन कम हो गया, अगर ऑक्सीजन नहीं जा रही है तो क्या होगा, इट लीड्स टू अनीमिया, अनीमिया। ठीक है, सो यही बेसिकली दो तीन चीजें हैं, और आप याद रख लो और क्या क्या हो सकता है अगर ऑक्सीजन नहीं जा रही। सो ब्रेथलेसनेस हो सकती है, सांस लेने में डिफिकल्टी हो सकती है, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। आपने बेटा सुना होगा कि खून कम है, उसमें खून कम है, सो वो इसलिए वो जल्दी थक जाता है। सो फटीग हो सकती है, अर्ली टायर्डनेस, पेलर हो सकता है। आपने देखा होगा कि कहते हैं कि अखा आंखों में, आंखें जो है इसकी वो सफेद हैं तो इसमें खून कम है, सो पेलर हो सकता है। सो बेटा these are the various points which you have to write. Okay, so coming to next question, which is question number 8. Which part of brain maintains the posture and equilibrium? कौन सा पार्ट है ब्रेन का जो कि पोस्चर और इक्विलिब्रियम जो मेंटेन करता है? सो आंसर है सेरेबेलम। ठीक है बेटा, तो सेरेबेलम जो है वो पोस्चर एंड बैलेंस जो है मेंटेन करता है। अगर मैं इस ब्रेन को बीच में से काट दूं, ये जो ट्री शेप दिख रहा है, दिस इज द सेरेबेलम। ठीक है बेटा, सो नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस? सो बेटा बहुत आसान है, द सब्सटेंसेस, जो भी सब्सटेंसेस डिकम्पोज हो सकते हैं, विच आर decomposed और broken down। डिकम्पोज का मतलब क्या है कि टूट जाना, इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। कौन तोड़ेगा लेकिन, बाय एक्शंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। ठीक है बेटा, सो द सब्सटेंसेस जो कि टूट जाते हैं सिंपल सब्सटेंसेस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, उनको क्या कहते हैं हम, बायोडिग्रेडेबल। एग्जाम्पल क्या है इसकी, जैसे कि आपका पेपर है, पेपर ट्री से बनता है, सो ट्री जो है वो बायोडिग्रेडेबल है। जैसे कि आपका वेजिटेबल्स हो गए, ठीक है, सो जमीन पे पड़ा रहता है, वो अपने आप ही खत्म हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलता। ठीक है, ओके बेटा, एक और क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डिस्कस करना है, ऑल्दो ये यहाँ पे लिखवाया नहीं हुआ, दैट इज व्हाट आर डीकम्पोजर्स। बेटा डीकम्पोजर्स कौन होते हैं, द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म which
break or decompose biodegradable substances to simple substances are called decomposers. ठीक है, डिकम्पोजर की कोई एग्जांपल? सो जो भी इस वेस्ट को खत्म कर रहे हैं छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के, वो क्या है? डिकम्पोजर्स है। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, फंगाई हो गया। ठीक है, सो बैक्टीरिया एंड फंगाई। एंड इसकी कोई और कुछ, हाँ, इनके बेनिफिट क्या है? नंबर वन, ये डिक्रीज करते हैं पोल्यूशन, है ना? ऐसे कूड़ा करकट पड़ा रहेगा तो पोल्यूशन होगा। सो स्पेसिफिकली सॉइल पोल्यूशन। वैसे एयर पोल्यूशन भी कम करते हैं, वाटर पोल्यूशन भी कम करते हैं। नंबर टू, नंबर टू क्या होता है? इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। ये जमीन को उपजाऊ बनाते हैं, सॉइल। नंबर थ्री, जमीन को उपजाऊ बनाते हैं। आपने देखा होगा कि जो आपके पेरेंट्स होते हैं वो अपनी खेत में जाके वो गोबर वगैरह फेंकते हैं, खाद फेंकते हैं, गोबर खे फेंकते हैं। गोबर में क्या होता है? माइक्रोब्स होते हैं। तो माइक्रोब्स क्या करते हैं? फर्टिलिटी इंक्रीज करते हैं। नंबर थ्री, डिक्रीज। सो बेटे दो ही बहुत है। ओके, सो नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 10, विच इज अबाउट फूड चेन। बेटा फूड चेन क्या है? सो फूड चेन बेटा क्या है? अब देखो, ये ग्रास है, कैसे बना? सन से बना। ग्रास ने सन की वजह से ग्रास जो है वो बना, मतलब इसने अपना फूड बनाया, है ना? फोटोसिंथेसिस करके। ग्रास को खा गया कौन? ग्रास ऊपर खा गया। ग्रास ऊपर को कौन खा गया? फ्रॉग खा गया, डड्डू खा गया। फ्रॉग को कौन खा गया? स्नेक खा गया, सांप खा गया। सांप को ईगल ने खा लिया, हॉक ने खा लिया। तो जब ये हॉक मर गई तो उसे डिकम्पोज किसने कर दिया? बैक्टीरिया एंड फंगस ने। सो ये एक दूसरे को जो खा रहे हैं, यानी कि कैसे, अ, अब जब जब ये खा रहा है इसको, तो इसको क्या मिल रहा है? एनर्जी मिल रही है ना। सो ये एनर्जी का और न्यूट्रिएंट का जो एक्सचेंज हो रहा है आपस में इनके। सो यहाँ से इसने पहले एनर्जी बनाई खाना बना के, वो कौन खा गया? ये खा गया। इसने कुछ न्यूट्रिएंट्स बनाए थे, वो ये ग्रास ऊपर खा गया। यहाँ से लेके ये खा गया। सो ये जो ट्रांसफर हो रहा है, द प्रोसेस ऑफ, इट इज द लीनियर सीक्वेंस। इट इज द लीनियर सीक्वेंस। लीनियर मतलब एक ही डायरेक्शन में चल रहा है और एकदम सीक्वेंस से चल रहा है। ऐसा नहीं है कि ग्रास को ये सांप खाएगा। सांप ग्रास को नहीं खाता। ग्रास को कौन खाता है? ये ग्रास ऊपर ही खाता है। ठीक है, सो द लीनियर सीक्वेंस that shows the transfer of किस चीज का ट्रांसफर? एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम one organism to other in ecosystem is called food chain. सो बेटा एग्जाम्पल पूछी थी, सो एग्जाम्पल आपने यही बता देनी है। सो आप ऐसे ही चाहे ये डायग्राम ड्रॉ कर दो, अगर डायग्राम नहीं ड्रॉ कर सकते तो कम से कम ऐसे लिख दो, सन प्लांट, चाहे ग्रास लिख दो, फिर ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर से जो था फ्रॉग, फ्रॉग से स्नेक, स्नेक से चाहे आप हॉक लिख दो। एंड अगर आप इसको, फिर आप चाहे माइक्रोब लिख दो। अगर आप इसके नीचे ये बता दोगे कि ये प्रोड्यूसर है, प्राइमरी प्रोड्यूसर है, ये जो है वो प्राइमरी कंज्यूमर है,
या फिर ये सेकेंडरी कंज्यूमर है, ये टर्शियरी कंज्यूमर है, एपेक्स कंज्यूमर है, तो बहुत बढ़िया होगा। ठीक है, अदरवाइज इतना भी बहुत है। सो नाउ कमिंग टू नेक्स्ट विच इज अबाउट फंक्शंस ऑफ एसिड इन द स्टमक। सो एसिड की क्या क्या फंक्शन है? नंबर वन की एसिड होता कौन सा है? सो एसिड कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है? स्टमक पे। कौन सा एसिड प्रोड्यूस हो रहा है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड is produced in stomach। हाँ, इसके फंक्शन क्या है? नंबर वन, और ये HCl जो है वो पड़ा किस में होता है? इज प्रोड्यूस्ड इन स्टमक इन गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में पड़ा होता है ना ये। ओके, सो नंबर वन इसका फंक्शन ये है कि प्रोटीन की डाइजेशन में मदद करता है। ये जो प्रोटीन है इनको एक एंजाइम की मदद से डाइजेस्ट किया जा सकता है, पचाया जा सकता है। उस एंजाइम का नाम है पेप्सिन। एंड वो कब एक्टिवेट होती है? जब उसे क्या मिलता है? HCl मिलता है। एंड वो किस किस में कन्वर्ट हो जाता है? पेप्टाइड्स एंड प्रोटीओज। ये तो हमें पता ही है। सो द HCl in gastric juice provides acidic medium, वातावरण दे रहा है, एसिडिक वातावरण दे रहा है फॉर पेप्सिन टू गेट एक्टिवेटेड, कि पेप्सिन अब एक्टिवेटेड हो जा एंड डाइजेस्ट प्रोटीन, और प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने में हमारी मदद कर। कौन करवा रहा है? HCl। नंबर टू, ये जो HCl है ना, ये एसिड है, तो ये कई सारे जर्म्स को भी किल कर देता है। ऑल्सो किल्स मैनी germs in food because of its acidic property। ठीक है बेटा, सो ये दो पॉइंट्स हो गए। सो नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, कहता कि आप अपने होम को इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनाना चाहते हो तो क्या क्या कर सकते हो? सो नंबर वन देखो बेटा, यही प्लांट ट्रीज। आप पेड़ लगा सकते हो अपने घर के आसपास। ठीक है, प्लांट ट्रीज। नंबर टू, आप वाटर सेव कर सकते हो, सेव वाटर। अगर कोई नल जो है वो चल रहा है तो आप उसे बंद कर सकते हो। ठीक है, सो यही है, बहुत सारे काम आप कर सकते हो। ठीक है, प्लांट द ट्रीज। और एक और चीज जो आपके 10th क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट है, वेस्ट मैनेजमेंट। बेटा आप घर में ही एक बायोडिग्रेडेबल, क्योंकि देखो, जब आप कूड़ा, सपोज करो अब आपने घर का कूड़ा इकट्ठा किया है, उसी में आपने वेजिटेबल डाल दिए, उसी में आपने प्लास्टिक डाल दी। अब प्लास्टिक क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल है। वेजिटेबल क्या है? बायोडिग्रेडेबल है। तो आपको वेजिटेबल को किसी मिट्टी में फेंक देना चाहिए ताकि उस पे आए माइक्रोब्स आए और वो बायोडिग्रेडेबल हो सके, डिग्रेड हो सके, डिकम्पोज हो सके। और प्लास्टिक को आपको अलग जगह पर फेंकना चाहिए। सो वेस्ट मैनेजमेंट यानी कि आपको सेपरेट कर देना चाहिए द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एट होम। एंड आपको क्या करना चाहिए? नंबर 4 पे, प्रमोट रीयूज एंड रिसाइकल। अब आपको पता है कि जो प्लास्टिक है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, उसे पोल्यूशन ही करना है, तो आप उसे क्यों ना फिर से यूज कर लो। अगर आपकी कोई बोतल थी पुरानी, आप उसका कुछ और बना लो। ठीक है, और या फिर उसे फिर से रिसाइकल कर लो। ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट,
is about the function of platelets. So बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। प्लेटलेट्स क्या होते हैं आपको पता ही है कि ब्लड सेल तीन तरह के होते हैं, ये डब्ल्यूबीसी या आरबीसी या फिर प्लेटलेट। अब प्लेटलेट का फंक्शन क्या है ये बहुत अच्छा इसने बताया हुआ है। ये एक ब्लड वेसल है, एक ब्लड वेसल है, ये आरबीसी है, ये डब्ल्यूबीसी है, यहाँ पे इंजरी हुई पड़ी है। अब इंजरी को रोकने के लिए क्या होगा, ब्लड लॉस हो रहा था, ब्लड बाहर जा रहा था, उसको रोकने के लिए ये प्लेटलेट्स आ गए और इन्होंने एक ऐसा बना लिया, क्लॉट बना लिए। तो इससे क्या होगा, ब्लीडिंग जो है रुक गई। सो यही फंक्शन है। सो लिखो यहाँ पे, अगर कोई भी इंजरी होगी बॉडी में, एनी इंजरी ऑन बॉडी, सो अगर कोई भी इंजरी होती है बॉडी पे, सो व्हाट हैपन्स, ब्लीडिंग होती है, हमें पता है यही होता है, ठीक है। उससे क्या होगा, लॉस ऑफ ब्लड होगा। फ्रॉम बॉडी, अगर बहुत सारा ब्लड जो है वो लॉस हो गया तो उससे क्या होगा, शॉक हो सकता है, कैन लीड टू शॉक, अ सीरियस कंडीशन। हो सकता है बंदे में ब्लड ही खत्म हो जाए, वो बेहोश हो जाए, ठीक है। सो इससे बचने के लिए, सो टू प्रिवेंट दिस, सो टू प्रिवेंट दिस, होता क्या है, जो प्लेटलेट्स होते हैं सर्कुलेट करते रहते हैं इन द बॉडी, बॉडी में घूमते रहते हैं, और जहां पे भी ब्लीड हो रही होती है वहां पे जाके प्लग करते हैं लीकेज को, ब्लड की लीकेज को रोक देते हैं, प्लग कर देते हैं या स्टॉप कर देते हैं। कैसे, बाय फॉर्मिंग, सॉरी बाय क्लोटिंग ऑफ ब्लड, ब्लड को क्लॉट कर देते हैं, ठीक है। यानी किसी जमा देते हैं, आपने देखा ना जब आपको चोट लगती है तो एक जख्म बन जाता है, तो वैसा कर देते हैं, ब्लड को जमा देते हैं, कॉल्ड एज कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, ठीक है बेटा। तो आप ये बना के पेपर में दिखा सकते हो। ये एक ब्लड वेसल थी, इसमें आरबीसी भी है, इसमें डब्ल्यूबीसी भी है, ये इसमें प्लेटलेट है, ठीक है। सपोज करो कोई इंजरी होगी, तो ब्लड लॉस हो रहा है, तो ये क्या था, आरबीसी, ये क्या था, डब्ल्यूबीसी, ये क्या था, प्लेटलेट। सो अब यहाँ पे कौन आएगा, यहाँ पे आएगा आपका प्लेटलेट, ये प्लेटलेट आ गए, प्लेटलेट ने आके क्या कर दिया, कोएगुलेट द ब्लड, और उससे क्या होगा, ब्लीडिंग जो थी वो रुक गई, ब्लीडिंग स्टॉप्स। सो ये आपने पूरे का पूरा बना देना, एक बार लिख देना है और एक साइड पे ये डायग्राम बना देना, ठीक है बेटा। सो नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, which is about small intestine, how small intestine is designed to increase the absorption। सो जो बेटा बहुत ही अच्छी तरह से डायग्राम में है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है हमारी। सो ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आपको दिख रहा है कुछ ऐसा, कुछ फिंगर जैसा, इसको हम बोलते हैं विल्लस। इस विल्लस के अंदर ब्लड वेसल भी हैं, ये आपको जो दिख रही हैं, ठीक है। एंड ये सारी की सारी इंटेस्टाइन को अगर आप देखोगे तो ये ऐसी विल्लस, विल्लस जो है वो विल्लाए जो है वो सारी की सारी इंटेस्टाइन के अंदर पड़ी हुई। अब इससे होता क्या है, सो लिखो जरा, स्मॉल इंटेस्टाइन, सो रादर इनर वॉल ऑफ
small intestine have numerous finger like projections. ये आपकी फिंगर की तरह नहीं, उंगली की तरह नहीं है, प्रोजेक्शंस। और उनका नाम क्या है प्रोजेक्शंस का? कॉल्ड एज विलाय। बेटा इनसे होता क्या है? विच इंक्रीज एब्जॉर्प्टिव, एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। सो बेटा अब सपोज करो ये इंटेस्टीन है, एक ये इंटेस्टीन है। अब सपोज करो जहाँ पे फूड आ रहा है, जो फूड जा रहा है, ठीक है, यहाँ से अब्जॉर्ब हो रहा 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 है। अब इस इंटेस्टीन में भी फूड आ रहा है, सो फूड यहाँ से भी अब्जॉर्ब हो रहा है, यहाँ से भी अब्जॉर्ब हो रहा है, यहाँ से भी 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 हो रहा है। सिमिलरली कितना ज्यादा फूड जो है वो अब्जॉर्ब हो रहा है। सो क्या हो गया? इंक्रीज हो गया सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्ब। ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, जो विलस है, विलाए हैं जो, उनके पास क्या है? हैज ब्लड वेसल्स। आपने देखा अभी। सो जल्दी जल्दी से फूड एब्जॉर्ब करेंगी और सारी की सारी बॉडी पे लेके चली जाएंगी। ठीक है। सो दीज ब्लड वेसल्स टेक absorbed food via blood to every body part। ठीक है। तो आप बना के दिखा दो इनको। ये विलस थी, सपोज करो कि ये ग्रीन कलर यूज कर रहा मैं विलस के लिए, एंड इसमें ये ब्लड वेसल थी। ब्लड वेसल के लिए आपको ही पता है कौन सा कलर यूज करते हैं, रेड एंड ब्लू। सो ये ब्लड वेसल थी, ब्लड वेसल, ये विलस है। नंबर वन पे तो आप ये कह दो ये सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज हुआ है। नंबर टू पे ब्लड वेसल भी है। सो दिस इज ऑल अबाउट स्मॉल इंटेस्टाइन। सो कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, विच इज अबाउट इंसुलिन। हम डायबिटीज में इंसुलिन क्यों देते हैं? सो बेटा ना, इंसुलिन होता क्या है? वो एक हार्मोन है जो कि पेनक्रियास से सिक्रीट होता है। सो इंसुलिन इज अ हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय पेनक्रियास। ठीक है। एंड क्या होता है? एंड विच हेल्प्स इन डिक्रीजिंग ब्लड शुगर लेवल, ब्लड शुगर लेवल्स। अब आपको पता ही है डायबिटीज पेशेंट क्या कहता है कि उसकी शुगर बढ़, उसकी शुगर इंक्रीज हो गई है, शुगर बढ़ गई है, शुगर बढ़ गई है। तो क्यों शुगर बढ़ जाती है आखिरकार? इन डायबिटीज जो पेनक्रियाज होता है वो नहीं बना पाता शुगर, सॉरी इंसुलिन। पेनक्रियाज कैन नॉट प्रोड्यूस इंसुलिन, देयरफॉर ब्लड शुगर लेवल्स इंक्रीज। सो इसलिए दैट्स वाई insulin injections are given
टू डायबिटिक पेशेंट। डायबिटिक पेशेंट को इसलिए इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं टू कंट्रोल हिज ब्लड शुगर लेवल्स। तो इसकी ब्लड शुगर के लेवल्स इंक्रीज हो गए हुए हैं, सो वो कम हो सके। सो आपको पता है ये इंसुलिन है, इंसुलिन की सिरिंज है, इसमें जो है वो इंजेक्शन लगाया जाता है पेट के आसपास एंड यू गेट द ब्लड ग्लूकोज लेवल्स डाउन। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, टू रीजंस फॉर अडॉप्टिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। सो क्या क्या रीजन हो सकते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के? सो एक तो यही है, नंबर वन, प्रिवेंट्स अनवांटेड प्रेगनेंसी, है ना? ओके। नंबर टू, ये देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रोग्राम है, नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। सो उसके अंदर जिम्मेदारी निभाओ, प्लान बनाओ। सो फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग। नंबर थ्री, पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन कंट्रोल। ठीक है। नंबर फोर, आपको पता है कि एक जो कॉन्डम होती है, एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, उससे क्या होता है, कैन प्रिवेंट एड्स, HIV। Therefore, contraceptive prevents STD। और STD का दूसरा नाम क्या है? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। ठीक है। सो ये रही जेनिटल वार्ड, सिफिलिस, कैंक्रोइड। तो ये सभी की सभी जो है वो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस हैं, इनसे भी राहत पाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, what are two advantages of sexual reproduction over asexual reproduction? अब क्या क्या एडवांटेज है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एसेक्सुअल में? तो ये वही है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है इसमें क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता क्या है, टू डिफरेंट सेक्स इंडिविजुअल्स आर इन्वॉल्व, है ना? सो एक मेल होता है, एक फीमेल होती है, तो उसके लिए क्या चाहिए, गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस होता है उनका। गैमेटोजेनेसिस में क्या होता है, DNA कॉपी होती है। DNA कॉपी की वजह से क्या होता है, ये केमिकल प्रोसेस है जिसकी वजह से क्या हो जाता है, वेरिएशंस आ जाती हैं, बिकॉज जो केमिकल प्रोसेस है नॉट एब्सोल्युटली एक्यूरेट। सो उसकी वजह से क्या आ जाती हैं, वेरिएशंस। अब वेरिएशन क्या करती हैं, वो ही सब कुछ। नंबर वन, बेटर सर्वाइवल ऑफ पॉपुलेशन अंडर चेंजिंग environment. Number two, stabilize the population of a species. Number three, act as
footstep for evolution. So ये रहा evolution. ठीक है बेटा, बंदर से हम इंसान बन गए। किसकी बदौलत है? वेरिएशन की बदौलत। एग्जाम्पल मैंने आपको पहले भी वीडियो में एक्सप्लेन कर दी थी, तो आप वही जो है वो यूज कर सकते हो। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डिफरेंशिएट बिटवीन फूड चेन एंड अ फूड वेब। सो बेटा ये फूड चेन जो हमने भी पढ़ी है, एंड ये है फूड वेब। ठीक है बेटा, सो फूड चेन और फूड वेब में क्या डिफरेंस है? एक तो जी बेटा आपका डायग्राम ही है। नंबर वन, फूड वेब की हमने डेफिनेशन पढ़ी है कि एक लीनियर सीक्वेंस है of organism, a linear sequence showing transfer of energy and nutrients from one organism to other within a ecosystem. And food web क्या है? बेटा फूड वेब क्या होता है ना, कि जब बहुत सारी फूड चेन्स मिल जाती हैं, इट इज अ नेटवर्क ऑफ डिफरेंट फूड चेन्स ऑफ एन इकोसिस्टम। जब हम बहुत सारी फूड चेन को इकट्ठा कर देते हैं, वो बन जाता है फूड वेब। फॉर एग्जाम्पल जी, ग्रास को ग्रास ओपर ने खाया, इसको फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को स्नेक ने खाया था, स्नेक को हॉक ने खाया था। लेकिन ग्रास ओपर को बर्ड भी खा सकता है, बर्ड को स्नेक भी खा सकता है। ठीक है, सो उसी की तरह से ग्रास को माउस ने खाया, माउस को हॉग ने खा लिया, माउस को हॉक भी खा सकता है, इसको फॉक्स भी खा सकती है, फॉक्स को रैबिट भी खा सकता है। सो इसी तरह से ये नेटवर्क है। नंबर टू, एक स्ट्रेट चेन थी, ये आपने देखा, ये स्ट्रेट चेन तो है नहीं, बहुत कॉम्प्लेक्स सी है, कॉम्प्लेक्स एंड मल्टीपल पाथवेज। ठीक है, नंबर थ्री, इसमें एक सिंगल डायरेक्शन थी, सिंगल डायरेक्शन थी एनर्जी फ्लो की, है ना, ऑफ एनर्जी फ्लो। लेकिन इसमें आपने देखा मल्टीपल डायरेक्शंस है, सो मल्टीपल डायरेक्शंस ऑफ एनर्जी फ्लो। These are 3 points, and one is example. You can draw it. Okay, so it is example. ये आप लास्ट में ड्रॉ कर सकते हैं। Now next question. It is about involuntary and reflex actions different from each other. Okay. If you want, I can just draw it for you. So like food web. Suppose करो कि ग्रास थी, ये ग्रास को खा गया ग्रास ऊपर। ठीक है बेटा, ग्रास को वो भी खा जाती है ना, स्क्वेरल, और इसको खरगोश भी खा सकता है, रैबिट। खरगोश को फॉक्स भी खा सकती है। ठीक है, स्क्वेरल को बिल्ली भी खा सकती है, ग्रास ऊपर को मेंढक भी खा सकता है, मेंढक को स्नेक भी खा सकता है। ठीक है, लेकिन मेंढक को बिल्ली भी खा सकती है, स्क्वेरल को फॉक्स भी खा सकती है। ठीक है, स्नेक को ये ईगल भी खा सकती है, कैट को भी ईगल खा सकती है, रैबिट को भी ईगल खा सकती है, फॉक्स को भी ईगल खा सकती है। एंड इधर क्या था? सन था, सन से क्या आया था? ग्रास, ग्रास से क्या आया था?
ग्रास होपर, ग्रास होपर से क्या आया था? फ्रॉग, फ्रॉग से क्या आया था? स्नेक, स्नेक से क्या आया था? ईगल. सो ये एग्जाम्पल. सो आर यू हैप्पी नाउ? ओके. Now coming to next question. What is difference between involuntary and reflex actions? Okay. So now involuntary and reflex action. बेटा इनवॉलंटरी एक्शन वो है जो कि अपने आप हो रहे हैं, जिसके हमें सोचना नहीं पड़ता. ठीक है. रिफ्लेक्स एक्शन के लिए भी हमें सोचना नहीं पड़ता, लेकिन ये स्पाइनल कॉर्ड जो है कंट्रोल करती है, जो ब्रेन कंट्रोल करता है. इनवॉलंटरी एक्शन जैसे हमारा हार्ट जो है वो बीट करी जा रहा है, हमें नहीं पता, हम कह नहीं रहे कि हार्ट को बीट कर, वो खुद कर रहा है. रिफ्लेक्स एक्शन जैसे कि हमारा हैंड जो है, अगर हम आग को टच करेंगे, हमारा हैंड अपने आप ऊपर जा रहा है. हम नहीं कह रहे कि हमारे हैंड को कि वो ऊपर जाए, अपने आप जा रहा है. ये भी दोनों अपने आप हो रहे हैं, लेकिन फर्क क्या है? जो हैंड है, ये कौन सी मसल है? वॉलंटरी मसल है ना? जहाँ फिर वॉलंटरी ऑर्गन है. लेकिन हार्ट कैसा ऑर्गन है? इनवॉलंटरी ऑर्गन है. अब इसको समझने की कोशिश करते हैं. ओके. जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो भी इनवॉलंटरी है. ये जो इनवॉलंटरी एक्शन है वो भी इनवॉलंटरी है. लेकिन लेकिन क्या है? these occur immediately without any thinking. ठीक है, सोचना नहीं पड़ा, अपने आप से हो रही. आर कॉल्ड इनवॉलंटरी एक्शन. ठीक है. ये क्या है? इनवॉलंटरी एक्शन है ये भी, लेकिन मैकेनिकल है. क्या है? मैकेनिकल है. ठीक है. यानी कि एक मसल काम कर रही है. कौन सी मसल? स्केलेटल मसल काम कर रही है. एक्शन which occurs immediately in response to event. दोनों में फर्क समझो. हार्ट अपने आप बीट करी जा रहा है. ऐसा नहीं है कि अगर हमें सुई चुभेगी तभी हार्ट बीट करेगा. हार्ट अपने आप बीट करता रहेगा. लेकिन जो हैंड है वो तभी मूव करेगा जब हमें कोई हाथ आग पे लगेगा, तभी हाथ ऊपर अपने आप उठेगा. ठीक है. सो दिस इज द थिंग. ओके. उसके बाद इसमें ब्रेन की जरूरत है. ये कंट्रोल कहाँ पे हो रहा है? इसका कंट्रोल कौन करता है इन्हें? और इनवॉलंटरी एक्शन को कौन कंट्रोल करता है? मिड ब्रेन या फिर हाइंड ब्रेन. लेकिन इसे कौन कंट्रोल करता है? स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है ना. ब्रेन को तो बस एक मैसेज जाता है. फॉर एग्जाम्पल यही ब्रीदिंग, बीटिंग ऑफ हार्ट. और इसकी एग्जाम्पल जैसे टेकिंग हैंड अवे. ठीक है. ऑन टचिंग अ कैंडल. ठीक है बेटा. सो दिस इज द रिफ्लेक्स सेक्शन. ये बहुत डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के चैप्टर में. अगर आपको ज्यादा डिटेल चाहिए तो आप वहां पे जाके ले सकते हो. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ किडनी? सो क्वेश्चन नंबर 20. व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ किडनी? सो बेटा किडनी के मेन फंक्शन क्या है? यही है किडनी हमारी. नंबर वन तो यही है कि यूरिन प्रोड्यूस कर रही है. सो नंबर वन, यूरिन प्रोडक्शन. अब इसको डिटेल में लिख लेते हैं थोड़ा.
kidney to move nitrogenous waste like uric acid and urea in form of urine. नंबर 2, आपने देखा होगा कि जब हम ज्यादा पानी पी लेते हैं तो हमें ज्यादा बाथरूम आता है. सो इट रेगुलेट्स वाटर एंड salt balance of body. ठीक है. So now coming to next question, which is again about difference between manner in which leg movement take place and sensitive plant movement take place. बेटा देखो, हमारी लेग की मूवमेंट है हमारी मर्जी से हो रही है, वॉलंटरी एक्शन है. ठीक है. और क्या हो रहा है कि हम सोचते हैं कि हमने लेग मूव करनी है, नर्व इम्पल्स आती है ब्रेन से मसल पे जाती है एंड मसल जो है वो शॉर्ट हो जाती है क्योंकि प्रोटीन होता है उसकी वजह से. ठीक है. लेकिन जो वाटर है उसमें कोई प्रोटीन नहीं है प्लांट में. उसमें क्या होता है कि जैसे आप टच करोगे तो जो लीफ है वो फोल्ड हो जाएगा. ये कुछ वाटर का मैकेनिज्म होता है. सो हम लिख लेते हैं नंबर 1. कंट्रोल कहाँ है? नर्व मसल, है ना. कि लेग इज इन कंट्रोल ऑफ नर्व मसल, जो मसल्स के कंट्रोल में है. लेकिन ये जो प्लांट है, ये जो इसकी लीव्स हैं, लीव्स ऑफ सेंसिटिव प्लांट आर सेंसिटिव टू टच. ये टच पे काम करते हैं, ये मसल पे काम करते हैं, ये टच पे काम करते हैं. अगर टच करोगे तब वो लीव जो है वो गिर नीचे गिरेंगे. नंबर 2, कंट्रोल कहाँ पे है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. इसको कोई भी पार्ट जो है कंट्रोल नहीं कर रहा. नॉट कंट्रोल्ड बाय एनी पार्ट ऑफ प्लांट. नंबर 2, जहाँ पे जो सेल है movement take place because of change in protein configuration. यहाँ पे वाटर की वजह से जो चेंज हो रहा है. ठीक है. सो change of shape is due to change in amount of water. नंबर 4, ये एक इनवॉलंटरी मूवमेंट है ना, नास्टिक मूवमेंट है. ये क्या है? वॉलंटरी मूवमेंट. ठीक है बेटा. सो दीज आर फ्यू answers which you need to write for this question. Number 2, number 3, number 4. Okay. So now coming to next question, which is about function of testes. Okay. So बेटा ये ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये टेस्टिस है हमारा, ये हमारी सेमिनल वेसिकल है, ये प्रोस्टेट है. सो टेस्टिस क्या करता है? ये स्पर्म बना देता है. स्पर्म यहाँ से आता है, यहाँ से आता है, यहाँ से आता है. रास्ते में सेमिनल वेसिकल क्या करता है? उसे न्यूट्रिशन देता है. ठीक है. सो न्यूट्रिशन देता है. और प्रोस्टेट क्या करता है? जब प्रोस्टेट से यहाँ से आता है स्पर्म, तो प्रोस्टेट क्या करता है? उसे मोटिलिटी देता है ताकि वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जाके चल सके. सो नंबर 1 टेस्टिस, नंबर 2 सेमिनल वेसिकल, नंबर 3 प्रोस्टेट. सो टेस्टिस के बेटा दो काम है.
नंबर वन, ये प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है। नंबर टू, ये क्या करता है? फॉर्म प्रोडक्शन करता है। नंबर थ्री, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्रिएट करता है। नंबर फोर, सेकेंडरी सेक्सुअल चेंजेस लेके आता है बॉयज में, ठीक है। सेमिनल साइकिल का क्या काम है? गिव्स न्यूट्रिशन टू स्पर्म, स्पर्म को न्यूट्रिशन देता है। एंड प्रोस्टेट का क्या काम है? गिव्स मोटिलिटी टू स्पर्म, ताकि वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जाके फर्टिलाइजेशन कर सके। ओके, नाउ क्वेश्चन इज डिफाइन पैरासाइट। तो बेटा व्हाट इज पैरासाइट? सो बेटा आप ये पिक्चर देख रहे हो, ये जो पिक्चर है इसमें एक टेप फॉर्म है। और ये टेप फॉर्म क्या करता है, आपने सुना होगा कि घर पे बोलते हैं कि जो पैरासाइट होता है वो मतलब कि इसके पेट में बड़े कीड़े हैं इसलिए इसको कुछ लग नहीं रहा है, ये बहुत खाता है लेकिन इसको एनर्जी नहीं मिलती। सो वो किसकी वजह से है? वो पैरासाइट की वजह से, टेप फॉर्म की वजह से होता है। सो लेट अस सी कि टेप फॉर्म, ये जो पैरासाइट है ये करता गया है। द टेप फॉर्म is organism. The parasite is an organism which derives its nutrition from the living host. एक जिंदा आदमी से उसका न्यूट्रिशन खाई जाना, वो काम किसका है? पैरासाइट का। जैसे कि ये मॉस्किटो है, ये हमारा ब्लड सक करता है, हमें काटता है, हम जिंदे ही हैं, हमारा ब्लड लेता है और पी जाता है, ठीक है। ये टेप फॉर्म है, हम खाते हैं, एनर्जी आती है, लेकिन एनर्जी कौन ले जाता है? ये टेप फॉर्म। सो लेकिन ये बाहर रहता है बॉडी के, ये अंदर रहता है बॉडी के। सो पैरासाइट जो है, नंबर वन, ये इसकी डेफिनेशन होगी कि ऑर्गेनिज्म विच ड्राइव्स इट न्यूट्रिशन फ्रॉम द लिविंग होस्ट। नंबर टू, पैरासाइट शो हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, है ना, खुद तो खाना बना नहीं रहा, हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। नंबर थ्री, पैरासाइट जो है वो दो तरह का हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे है। एक तो जो बॉडी के अंदर है, इनसाइड बॉडी, इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक, एक एक्सट्रिंसिक, आउटसाइड बॉडी, ठीक है। इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल टेप, एंड एक्सट्रिंसिक एग्जाम्पल मॉस्किटो, ठीक है। जहाँ पे टिक्स हो गया, लिक्स हो गया, ये सब। ओके, सो पैरासाइट इज डन। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन? सो ये बहुत ही आसान है कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है। सो बेटा देखो, जो ब्रीदिंग है ना, ब्रीदिंग इज सिंपल। आपने ऑक्सीजन ली, लंग्स में आई, दिस इज ब्रीदिंग। कार्बन डाइऑक्साइड लंग से बाहर गई, ये क्या है? ब्रीदिंग। इस दोनों को कहते हैं ब्रीदिंग, ठीक है। सो
taking in oxygen and giving out carbon dioxide is called breathing. ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, ये एक फिजिकल प्रोसेस है ना, फिजिकली है। नंबर थ्री, इसमें कोई एनर्जी रिलीज नहीं हो रही, ठीक है, नो रिलीज ऑफ एनर्जी। नंबर फोर, ये कहाँ पे हो रहा है, लंग्स में हो रहा है, इन लंग्स। नंबर फाइव, ये दिख सकता है हमें, जब हम सांस लेते हैं तो हमारी छाती जो है वो मूव करती है, कैन बी सीन एज chest movement. Now coming to its counterpart, which is about respiration. अब ये रेस्पिरेशन है, ये सेल में होता है। कहाँ पे होता है, सेल में होता है। सो देखो, जो भी आपने खाने से एनर्जी ली थी डाइजेशन से, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना किसका काम है, किसका काम है, रेस्पिरेशन का। सो रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन क्या है, यूजिंग ऑक्सीजन टू ब्रेक फूड एंड रिलीज एनर्जी। ये कैसा प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस है। एनर्जी रिलीज होती है, हाँ होती है। कैसी एनर्जी, एटीपी। कहाँ पे होता है, इन सेल, ठीक है। देख सकते हैं हम इसे, नो, कैन नॉट बी सीन, ठीक है बेटा। सो ये जो है वो रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में डिफरेंस है, एंड दिस इज ऑल अबाउट पार्ट वन।